Stuti Gogia. In case you are listening this voice for the very first time, you can go check out my social media handles. And this is season 2 of Stuti Speaks. And I am actually loving this season because this is all about my guest. The first season was mainly solo podcasting, but I'm enjoying more the guest based podcasting. So I'm truly loving it. So today I have my guest with me, whose name is Hina Raheja. And how I know Hina is a complete story. I want to give a bit context about it. So I was going through and scrolling my Instagram, and I saw this girl, and I really found her attractive. I went and saw a few of her stories. She was speaking about travel and other stuff. So I went and I scrolled down more, and I saw the bio, and I got to know that she's from the same hometown as mine. We were both from Bhiwani, so that was one common context. And then I randomly messaged her on few stories, and I was super surprised that I got the reply as well, which I was not expecting. So it was amazing, and then we started bit of talking. I actually love her content, and later I got to know that she quit her full-time MBA job and now doing travel content creation, like completely full time. So I was again impressed, and I wanted to do a podcast with with her. And then one more thing which I want to talk is, she's the one who inspired me to do podcasting because I didn't know how to do it. Then I messaged her and asked कि कैसे करते हैं podcast, and she told me about Anchor, and that's where my podcasting journey started. So thank you so much, Hina, and over to you. You can give a bit of introduction to my audience, and then like we can go talking about you more. Hi Stuti, hi everyone. And before I actually start talking, I would say कि I am literally overwhelmed with such a beautiful welcome and beautiful introduction about myself. मतलब मैं थोड़ा सा ना ऐसे एक होता है ना सिर पे चढ़ गई, चने के झाड़ पे चढ़ गई। I am kind of feeling that अपने बारे में इतना अच्छा अच्छा सुन के ना, और किसको अच्छा नहीं लगता है. So I am You no. deserve this. You deserve this for sure. अरे यार. Thank you so much, yeah. Thank you so much. This means a lot. And again, have being from the same city, it actually means a lot to see, people from Bhiwani coming up on social media and doing things and, trying to make their mark on social media, actually trying to do something for themselves first. Yeah. Then Because for coming from small town is a different story. I mean, many metropolitan exactly. kids don't know that. So we have faced it. Yeah. या मतलब जो नहीं फेस करके आया ना, वो नहीं समझ पाएगा, उनको नहीं पता कि रियलिटी क्या होती है. मतलब अपने घर से आपको 100 मीटर भी दूर जाना है तो आपको आपके भाई के साथ जाना पड़ेगा, या पापा छोड़ के आएंगे, या चाचा छोड़ के आएंगे. ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, शायद सुनने में अजीब लगे या नहीं लगे, आई डोंट नो, बट इन रियल this is True a that. different situation. But I will not really go to that direction. Again, I would say ki still my family has been extremely supportive and everything, so no complaints in that front. But anyway, coming to myself, as Tuti already told you guys a bit about me, so I would add on to that. I am Hina Raheja. I am from Bhiwani, Haryana. I am an MBA by education, by qualification, and I have worked for a few years in few companies. I experimented a lot, and I was someone who literally wanted to do like do a good job, a real good job. I have always, dreamt of wearing good formals, going to the companies and good big companies, do meetings and all that stuff जो टीवी में थोड़ा सा फैंसी पिक्चर दिखाते हैं हर चीज की, तो मुझे वो करना था. एंड somehow पता नहीं यार, मेरे को कोई जॉब मेरे मतलब की मिली नहीं. मैंने इतने स्विच किए ना कि मेरे को अच्छी जॉब चाहिए, मुझे करनी है जॉब, मुझे पैसा कमाना है और उस पैसे से फिर मुझे ट्रैवल करना है. बट वो नहीं हुआ ना. आई वाज लाइक फक ऑफ, मतलब मेरे को नहीं करनी है जॉब, भाड़ में जॉब. मेरे को मिली नहीं अच्छी जॉब, एंड आई इवेंचुअली गेव अप. एंड somehow travel also started along with the job. But then I took this leap of faith and plan to quit my job forever and take this journey, at least give it a try, this journey of content creation, documenting my life and all. So yep, currently I'm on that path. And as I travel, I document my journey in the form of videos, pictures, and text also. I write sometimes, and then podcast also. So yeah, more or less this is about me. Currently I'm in Mumbai, Yeah, and that. currently you just got shifted to Mumbai. You were previously in Bangalore, right? Yes, right. So I want to ask one thing. Like for me, I was traveling since I was a kid, school trips वगैरह पे. लेकिन एक मेरा travel experience था where I went to Goa in 2011.
आई वॉज गोइंग थ्रू अ लो फेज इन माई लाइफ, बहुत लो फेज था, एंड आई वेंट टू गोवा. और गोवा की पता नहीं हवा में कुछ है, आई डोंट नो. The person who went to Goa and the person who came out from Goa were two different people. I was not the same person who went, and that's how I realized कि how liberating travel is. I'm Yeah. sure आपका कुछ experience होगा. So where your journey started? Tell me how it started for you. यू आर वेरी राइट. मतलब नो मैटर हम कितने भी ट्रिप ले लें, इनफैक्ट अभी तक भी मैं जो भी ट्रिप पे जाती हूँ, आई गो एज वन पर्सन एंड आई कम बैक True, एज ए पर्सन. true. कहीं ना कहीं वो हमारे माइंड को और हमें एज अ पर्सन इम्पैक्ट करते ही है. बट द लाइफ चेंजिंग जर्नी दैट हैज बीन फॉर मी इज लाइक माई फर्स्ट ट्रिप दैट आई टुक. लाइक लेजिट मेरे एडल्टहुड का फर्स्ट ट्रिप. बचपन में मैंने कभी कोई ट्रैवल नहीं किया. मेरे मम्मी पापा ने मुझे करने भी नहीं दिया, और मेरे दिमाग में भी नहीं था कि ट्रैवल कुछ होता भी है. जीरो एक्सपोजर ऑन दैट फ्रंट. बट देन मेरा वो फेज चल रहा था लाइफ में वेयर आई वाज गोइंग थ्रू अ बैड रिलेशनशिप एंड जॉब लगी ही थी. फर्स्ट जॉब थी कॉलेज के बाद. आई वाज नॉट लाइकिंग इट एट ऑल, एंड हर चीज थोड़ी सी ना अजीब थी लाइफ में. समझ नहीं आ रहा था कि यार क्या करना है. जस्ट वन स्टेप इनटू एडल्टहुड एंड यू स्टार्ट फीलिंग लॉस्ट, कि पता ही नहीं होगा क्या लाइफ में. सो देन ऑफिस में ही मैं ऐसी फेसबुक स्क्रॉल करी थी. देन आई गॉट दिस ऐसे ही पोस्टर सा, एक एड सा सामने आया. कोई कंपनी थी इंडिया 42 करके उस टाइम. इट वाज इन 2016 एज आई रिमेम्बर. यस 2016 या 2015 का एंड, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है. तो उस टाइम पे उनका एक ट्रिप था. उसमें लिखा हुआ था जैसलमेर विद 42 स्ट्रेंजर्स. एंड आई वाज लाइक ऐसा होता है क्या? मतलब मेरे दिमाग में वो ये जवानी है दीवानी वाला सीन था कि लोग ऐसे ही ट्रेन पे चढ़ के जा रहे हैं. एंड समहाउ आई वाज सो इंस्पायर्ड बाय दैट मूवी दैट टाइम कि मेरे को वो करना था. और समझ रहे हो कि मतलब एक एक होता है ना छोटा बच्चा खड़े होके ऐसे ही आसमान में देख के बोल रहा है कि मुझे तारा चाहिए. तो इट इज लाइक इम्पॉसिबल. मेरे लिए वो उतना ही इम्पॉसिबल था Hmm. उस टाइम के हिसाब से, कि यार कैसे ही हो सकता है ये सब. तो फिर वो जैसलमेर के ट्रिप की वो एड देख के आई वाज लाइक कि यार क्या ये किया जा सकता है या नहीं. एंड उस टाइम पर मैंने सबसे पूछना शुरू किया, जो मेरे दोस्त थे, मेरी फैमिली, मतलब मेरे कजन्स, मेरा ब्रदर सिस्टर एंड ऑल. और अकेले करने की तो हिम्मत नहीं थी. Hmm. देन मैंने अपने दो दोस्तों को रेडी किया, अपने भाई को रेडी किया, अपने भाई के दोस्त को रेडी किया कि वो भी अकेला नहीं फील करे. तो हम टोटल 5 लोग उन 42 लोगों को, मतलब इन टोटल 42 थे और हम 5 थे, और मैंने वो ट्रिप ज्वाइन किया टू जैसलमेर. दैट वाज लाइक लिटरली स्टेपिंग आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन फॉर Comfort द zone. फर्स्ट टाइम इन लाइफ. एंड उस ट्रिप पे जाके मतलब बहुत लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था वो मेरे लिए. बिकॉज अगेन काफी ज्यादा इमोशनल और ओवरवेलमिंग मोमेंट था मेरे लिए, कि मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्या हूँ. मतलब उन 40 लोगों के साथ मैंने बात ही नहीं करी. वुड यू बिलीव दैट? मुझे मैं Oh my बोल God. मुझे पता ही नहीं मैं क्या बात करूं. हमेशा ही वही फैमिली में रही हूँ या फिर गिने चुने 2-4 दोस्तों के साथ. कोई एक्सपोजर नहीं लाइफ में, कोई कॉन्फिडेंस नहीं एंड ऑल. बहुत कॉम्प्लेक्स सा भी फील हो रहा था काफी लेवल पे. मतलब ट्रेन जर्नी इतनी लंबी थी, मैं पूरी ट्रेन में अकेली बैठी रही. मतलब एट द एंड ऑफ द ट्रिप दोज टू ऑर्गेनाइजर्स केम अप टू मी कि यार मतलब तुम ऐसे ही हो क्या? तो मुझे नहीं पता मैं कैसे हूँ यार, क्या बताऊँ मैं कैसे हूँ, मुझे खुद ही नहीं पता. इट्स लाइक यार ये तो नहीं चाहिए मुझे लाइफ में. मतलब इतना कॉम्प्लेक्स और इतना अंडर कॉन्फिडेंट एंड ऑल दैट. तो मतलब दैट वाज लाइक a journey of self exploration at so many levels. So that was one for me. And उसके एग्जैक्ट 2 साल के बाद, या सेम डेट्स, सेम डेस्टिनेशन, I took a trip to Jaisalmer. I organized that trip. I took 40 people there. Travel So affair. yeah, I mean वो मेरे को लगता है अभी तक की मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है. 42 Hmm. लोगों को बोल भी नहीं पाना, और उसके बाद 40 लोगों को लेकर जाके बस में खड़े होके माइक में मैं उनके ऊपर चिल्ला रही हूँ यार तुम टाइम से नहीं आओगे, यहीं छोड़ के चली जाऊंगी. दैट ट्रांजिशन. तो या Yeah, दैट. and Hina is talking about her venture, which is travel affair. So she started that, taking people out to trips, right? थोड़ा सा उसके बारे में भी बता दो audience को, a slight idea. यस बिल्कुल. सो आई स्टार्टेड दैट वेरी रैंडमली. सो मैं मतलब उसका इंटेंट बताती हूँ. जैसे जैसे मैंने अपनी ट्रैवल थोड़े ज्यादा फ्रीक्वेंट किए, इट वाज एज आई सेड इट वाज अ जर्नी ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन फॉर मी. बीइंग अ पर्सन, जैसे मैंने अभी बताया, अपने आप को डिस्क्राइब किया, उससे उस जोन से मैं बाहर आना चाहती थी. आई वांटेड टू फील कॉन्फिडेंट, आई वांटेड टू सी थिंग्स, आई वांटेड टू लर्न मोर थिंग्स एंड एवरीथिंग. और
मुझे ऐसे लग रहा था कि ट्रैवल करके मुझे इतनी ज्यादा रियलाइजेशन हो रही है, और काफी चीजें मैं सीख भी रही हूँ इन अ वे, मतलब पॉजिटिव वे ओनली, इट वाज हेल्पिंग मी। सो मुझे लगा कि मेरे जैसे पता नहीं कितने ही लोग होंगे ऐसे जो ऐसे ही, हम्म, क्या पता मेरे से भी गंदी सिचुएशन में होंगे। तो हम्म, हाउ अबाउट, मतलब ऐसा कुछ किया जाए कि उन लोगों को भी हेल्प हो किसी तरीके से। सो हम्म, दैट हाउ ट्रैवल अफेयर्स का आइडिया केम अप, एंड अगेन इट वाज वेरी रैंडम। हम्म, देन I was, traveling to some place. I thought कि चलो सोलो ट्रैवल करते हैं, करते करते ऐसे ही 10 लोगों ने ज्वाइन कर लिया। लाइक मेरे हम्म, बोला कि मैं भी चलूंगा। फिर उसने आगे अपने दोस्तों से पूछा, फिर उन्होंने आगे पूछा, करते करते 12 लोग हो गए, और उस व्हाट्सएप ग्रुप बनाना पड़ा उसके लिए, ऑब्वियसली ऑर्गेनाइज करने के लिए। एंड समहाउ आई वाज लाइक द डिफॉल्ट ऑर्गेनाइजर ऑफ दैट ट्रिप बिकॉज आई इनिशिएटेड दैट। सो व्हाट्सएप ग्रुप का नाम समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने ट्रैवल अफेयर्स रख दिया जी, वाओ, एकदम। सो दैट वाज लाइक कि ऐसा प्लान नहीं था कि ट्रैवल अफेयर्स आगे भी कुछ करने वाला है। तो वो ओके, फिर सोचा कि चल यार एक और करते हैं, और ऐसे सोलो ट्रैवलर्स, मतलब मेरे जैसे। So I was saying कि ऐसे करते करते started from random trip and eventually ended up organizing more than 25 trips. बट देन अभी काफी टाइम से मैंने ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज नहीं किया है, कोविड में ऑब्वियसली बंद हो गया था, एंड उसके बाद भी फिर टाइम नहीं मिला। उसके बाद आई एक्चुअली स्विच्ड टू माय पर्सनल ट्रिप्स एंड क्रिएटिंग कंटेंट मोर। बट अगेन ऐसा मैं मेरा जब दोबारा मन करेगा तो मैं ऐसे ट्रिप्स और ऑर्गेनाइज करूंगी जैसे ही मुझे चांस मिलेगा, बिकॉज इट इज अ पैशन प्रोजेक्ट फॉर मी। सो या यू नेवर नो कब होगा नेक्स्ट ट्रिप। yeah, and that was a journey because मतलब अब सुन के you must be feeling कि for that like वहां से 42 हो गई ट्रैवल अफेयर्स की बात। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नाउ लेट्स टॉक अबाउट TEDx के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। सो हाउ वाज योर TEDx एक्सपीरियंस, वो कैसा था? Well, TEDx happened in my life in a very early stage. I mean, भी नहीं पता था, ये तब हो गया था मेरे साथ तो। जब विश तो लिस्ट में नहीं था तभी हो गया था। हाँ, मतलब मैंने नहीं, इट वाज इन माय बकेट लिस्ट टू बी ऑनेस्ट। मैंने इसको कहीं लिखा हुआ था अपनी नोट पैड में कि मुझे ये करना है लाइफ में। बट इतना जल्दी हो जाएगा मुझे उम्मीद नहीं थी। मुझे तो ठीक है, अभी तो मतलब 10 15 20 साल भी लग सकते हैं इस सपने को पूरे करने में। बट ओके, देन इट हैपेंड इन अ वे दैट समवन फ्रॉम दैट टीम, टेक टीम ऑफ दैट कॉलेज, शी वाज फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड from there she contacted me, and obviously I, why would I say no to नो, that? I was like literally dancing and all कि यार ऐसा हुआ है। मतलब मेल आया जैसे, आई वाज लाइक वाओ, इज दिस रियल? सो इट वाज लाइक दैट, एंड अगेन इट हैज बीन अमेजिंग एक्सपीरियंस। बट एज आई सेड इट हैपेंड वेरी अर्ली। उस टाइम मुझे शायद लाइफ में इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था। इफ आई कंपेयर इट विद माई सेल्फ राइट नाउ, शायद अगर आज मेरे को वो इनवाइट आएगा तो मेरे पास बहुत कुछ है बोलने को, बताने को, और एक्चुअल सेंस में इंस्पायर करने को। बट उस टाइम कम था। बट हाँ, जो भी था वो, इट वाज लाइक अ बिगिनिंग ऑफ माई जर्नी, and it was amazing. It was amazing. Like it was in 2017, and standing on that stage, and talking to people, like talking to a room full of people, स्टेज पे जाके सबको डैब करवाना, एंड सारे वो ऑटोग्राफ ले रहे थे। मतलब आई वाज लाइक कि क्या हो रहा है ये मेरे साथ। वाओ, मतलब वो होती है ना हर किसी की विश लिस्ट के। मेरे को मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम कोई मुझे बोले आई नो यू, आई मीन यू आर, फॉर यू दैट पर्सन इज स्ट्रेंजर एंड दे नो यू, सो बहुत ही अमेजिंग फील होती है वो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली Hmm. Hmm. So I mean that's how TEDx happened, right, for you? या या So अभी you must be feeling कि एक बार और होना चाहिए, एक बार हाँ। और, या जोश टॉक्स टाइप्स बिल्कुल कुछ, जोश। एग्जैक्टली हाँ, एग्जैक्टली। बिकॉज मेरे को याद है कि उस टाइम पर आई वॉज नॉट इवन दैट प्रिपेयर्ड। अगेन मैं अब वाली हिना को कंपेयर कर रही हूँ उस टाइम वाली हिना के साथ। यार अलग होता, मतलब इट वॉज अमेजिंग इन एवरी सेंस। आई विल नॉट से एनीथिंग बैड अबाउट इट। इट जस्ट कि उस टाइम इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं था, मुझे खुद इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। तो अगर अभी मेरे साथ होगा तो आई गेस मैं उस मोमेंट को और बहुत अच्छे लेवल पर एंजॉय कर पाऊंगी। तो बट आई बिलीव आई हैव टू समथिंग टू से ऑन दिस। अगर वो नहीं होता तो शायद ये नहीं होता। आई मीन वो होना इज वाज द पार्ट ऑफ जर्नी, या राइट? ऑब्वियसली लाइक इट इज अ ग्रेट चैप्टर। मतलब आई वुड से कि लोगों को ना जर्नी के बहुत बाद में वो चैप्टर मिलते हैं। मेरे को मेरी जर्नी की स्टार्ट ही वहीं से हुई थी। इन अ वे आई मीन आई फील ब्लेस्ड कि स्टार्टिंग में ही टेड स्टेज पे, एंड लाइक वाओ। तो सो अभी एक और चीज मुझे पूछनी है जो मेरा ऐसे ही बात करते करते मन में आया।
Hmm. when you start creating content for travel, right? Even I travel, I create content, but कई बार ऐसा नहीं होता कि आपको ऐसा लगता है कि हम एंजॉय नहीं कर पा रहे, इट्स मोर अबाउट ट्रैवल, मतलब जो फील और द मूवमेंट होता है या बीइंग इन प्रेजेंट होता है वो कई बार नहीं हो पाता, बिकॉज यू हैव कांस्टेंट प्रेशर कि एक रील बना लेती हूँ, एक वीडियो बना लेती हूँ, एक फोटो खींच लेती हूँ, या फिर ये यूट्यूब पे डल जाएगा, मतलब मेरे को Hmm. ऐसा फील होता है. दिस इज माई ओपिनियन, सो मे बी यू कैन पुट सम लाइट Yeah. ऑन इट. See, again, travel ना एक जर्नी है, एज इन नॉट जर्नी दैट यू टेक फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, कि आप ट्रेन में चले गए या बस में चले गए तो वो जर्नी होगी, नॉट इन दैट सेंस, बट जर्नी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ योर सेल्फ. And you learn a lot of things about yourself, your content. Let's say content is my profession, content creation is a part of like a major part of my travels, you know. तो धीरे धीरे जैसे हर ट्रिप पे जा जाके मैंने काफी चीजें सीखी हैं, मतलब एक ट्रिप वाली गलती दूसरे ट्रिप पे रिपीट नहीं करी, या हर ट्रिप पे कुछ ना कुछ नई लर्निंग होती है. सो ऑल दिस वाइल, लाइक इन पास्ट फ्यू मंथ्स एंड ईयर्स, आई वुड से कि अब मुझे ऐसा लगता है मेरी लाइफ में कि मैं काफी लेवल पर बैलेंस करना सीख गई हूँ, कि मैं पहले ट्रिप एंजॉय करूँ और उसके बाद फिर मैं कंटेंट क्रिएशन करूँ, या फिर मेरे माइंड में ना वो क्लैरिटी थैंकफुली काफी लेवल पर अभी आई है, काफी Okay. trip करने के बाद, कि यार मुझे किस टाइप से कंटेंट क्रिएट करना है कि मेरा माइंड भी सही रहे, मतलब उसका पर्पस उतना फुलफिल होए एंड कंटेंट भी अच्छे से निकल आए. बट आई विल नॉट से कि मेरे को अच्छे से आ गया है, आई एम स्टिल लर्निंग. फॉर एग्जाम्पल, अब आज 3-4 हफ्ते पहले आई वॉज इन गोवा, आई वॉज देयर फॉर लाइक 15 days. I created like literally very good content there. बट आई वुड से दैट मैंने उससे भी ज्यादा एंजॉय किया उस ट्रिप को, बहुत अच्छे लेवल पर एंजॉय किया. और उससे पहले वाला जो ट्रिप था उसमें मेरे ऐसा था कि एक महीने में 6-7 ट्रिप्स बैक टू बैक है विदाउट इवन 1 day ब्रेक. वहां पर काफी लेवल पर मुझे लगा कि मैंने काफी गलतियां करी हैं जो मैंने गोवा ट्रिप पर रिपीट नहीं करी. एंड अगेन उससे पहले जो भी ट्रिप्स थे तो वो बहुत डिफरेंट थे. सो आई वुड से कि इट इज अ जर्नी फॉर यू, फॉर एनी वन हु इज लिसनिंग दिस, हु इज इनटू कंटेंट क्रिएशन. For everyone, it is going to be a journey only. Like you are going to learn a lot of things कि किस तरीके से मैनेज करना है कंटेंट क्रिएशन को एंड ट्रैवल को. बट अगेन इफ यू आर इनटू कंटेंट क्रिएशन प्लस ट्रैवल, ट्रस्ट मी, एंजॉय करना पहले ज्यादा जरूरी है, नहीं तो ट्रू, आई एग्री. कर ही नहीं पाओगे. कर नहीं पाओ. मैंने लेटली ये रियलाइज किया इन वन ऑफ माय ट्रिप्स, जो मुझे हैक लगा, बहुत ज्यादा रियल टाइम स्टोरीज में मत जाओ, बिकॉज दैट्स हाउ यू लॉस एंजॉयमेंट. Yes, yes, थोड़ा yes. सा स्लो करके स्टोरी एक दो डाल दी, देन यू कैन कीप क्रिएटिंग, बिकॉज अदरवाइज यू आर इनटू कंप्लीटली रियल टाइम स्टोरीज, और उससे आई थिंक बहुत ज्यादा मेस क्रिएट होता है. ये मेरा लेटेस्ट आई मीन लर्निंग है फ्रॉम माय लास्ट ट्रिप. Yeah. ये मैंने बहुत पहले सीख लिया था और उसको अप्लाई कर दिया था अपनी लाइफ में, इसलिए फिर सी कि ट्रैवल पर मेरी अब ज्यादा स्टोरीज नहीं आती हैं. हाँ. मतलब के हिसाब से ज्यादा नहीं आते हैं, मतलब ऑन अर्लियर ट्रिप्स, लेट्स से अगर 2 दिन का भी ट्रिप होता था तो हाँ. शायद 40-50 स्टोरीज से नीचे स्टोरीज नहीं होती थी. आई यूज टू स्पैम कि भाई हर इंफॉर्मेशन दे दो. बट नाउ देयर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स टू वर्क ऑन. सिर्फ इंस्टाग्राम स्टोरीज थी, रील्स नहीं थी एंड ऑल दैट. नाउ दैट विद एवरीथिंग इट इज इम्पॉसिबल, नो मैटर आप कितने मर्जी ह्यूमन रोबोट भी नहीं हो सकते ना, आप कितना मर्जी एफिशिएंट हो, आप सब कुछ नहीं कर पाओगे. एंड ऑलवेज गुड टू क्रिएट कंटेंट एंड घर पर आके फिर उसको आप पोस्ट करो. Right, when you have time you can edit it and like अपने schedule के according keep posting. That's what Exactly. even I learned, but I learned it late. Even I was doing like हर story डालनी है, हर 2 मिनट पे story जानी चाहिए. But Yeah. anyways, you are तो full time travel creator ना, मतलब मैं तो I was like जब मैं जाती थी तो करती थी, but yeah I got this learning. So let's come to some other points, like अभी क्या plans है, आगे क्या, अभी कुछ सोचा है कि आगे क्या करना है, या फिर go with the flow चलना है, या फिर how are यार things? अभी ऑनेस्टली मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगा रही हूँ, मतलब मैं बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टर्म गोल्स में बिलीव करती हूँ फॉर द टाइम, बिकॉज ज्यादा लॉन्ग टर्म मेरे को थोड़ा एंग्जाइटी क्रिएट कर देती है लाइफ में. एंड आई कोई फायदा नहीं है. सी बहुत सिंपल सी चीजें हैं लाइफ में ना, अगर देखो तो प्रोफेशनली अगर हम बात करें, 2 चीजें आती हैं, एक आता है पैसा और एक आता है जॉब सेटिस्फैक्शन. जो मैं कर रही हूँ उसमें जॉब सेटिस्फैक्शन है, ऑनेस्टली पैसा नहीं है. तो मुझे पैसा चाहिए तो एज सिंपल एज दैट, आई हैव टू स्विच द जॉब एंड डू समथिंग जिससे शायद वो सेटिस्फैक्शन नहीं रहेगी. Focusing on satisfaction plus again other goals like creating good content, gaining extreme numbers of followers and subscribers on YouTube and Instagram, etc. So again, going with the flow and making targets
very short term. For Hmm. example, let's say 2022 में मैंने सोचा कि मेरे को लेट्स से 5 प्लेसेस हैं जो कवर करके उनकी यूट्यूब वीडियोस बनाने हैं. सो आई एम करंटली मेकिंग टारगेट्स इन दैट सेंस. Okay. Hmm. That's a like more clear targets for you for the for the audience context. Hina has like 25 30K plus Instagram followers and 10K approximately subscribers now, and Yeah, I've seen you grow like literally from 2K to 10K, and I think it's really proud to know see someone so closely growing. I mean वो generally तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मतलब ग्रोथ को देख के एक्चुअल में खुशी फील होती है because you know the person is working hard, and there's a lot going behind the scenes. So I've seen you grow. So yeah, just for the context of audience, and you are available on many other platforms. I'm just because Insta, YouTube, थोड़े common है. That's why I gave the context. yeah. So yeah, so you are taking it slow. That's what you're saying. Like yearly goals के according, you'll keep moving. Yeah, plus I literally want to, enjoy the process. Matlab, again, this is again, I have learned very hard way, and it is a very recent discovery about myself. So when I see fellow content creators on Instagram and I see them, यार वो लगे हुए हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है. कई बार उनको देख के ऐसे फील आते हैं कि यार मैं क्या ही कर रही हूँ, मैं 1 महीने से घर पर बैठी हूँ, कहीं बाहर नहीं निकली हूँ. बट Hmm. अगर आपको उन सब चीजों से अपने फोन को साइड में रख के सोचो तो यार पर्सनली मेरा मन भी नहीं था ना बाहर जाने का, मैं तभी नहीं गई. मतलब इट इज True. नॉट, जा नहीं सकती थी. सो Hmm. अब आई एम मतलब स्विचिंग टू दैट मोड जहां पर मैं लिटरली मतलब 0% इन्फ्लुएंस होके अपने दिमाग से काम करूं, अपने दिल से काम करूं. बिकॉज अब जितना मर्जी कुछ भी कर लो, Hmm. कहीं आप सबकॉन्शियसली इन्फ्लुएंस हो रहे हो जो भी आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो या अपने फेलो True. क्रिएटर्स को देख रहे हो. बट दैट इज ऑनेस्टली नॉट सस्टेनेबल. आई वांट टू ग्रो बट ऑन माय स्पीड, चाहे वो स्पीड स्लो है, चाहे मुझे बहुत टाइम लग जाए, लेकिन आई वांट टू टेक इट स्लो एंड आई वांट टू एंजॉय एवरी पार्ट ऑफ इट. Yeah, enjoy every bit of it. Thoda sa, let's also talk about your workshop experiences. I know you take workshops as well. Recently, you collabed with Tripoto as well for a Yes, workshop. So how yes. is and usse pehle bhi I think you were taking personally workshops usse pehle bhi le rahe the. So how was that experience? And how is that experience mainly with respect to you and your learning? Obviously, जो ले रहा है उसकी learning तो होती है, उसमें कोई doubt नहीं है. Yeah. So I started taking workshop in 2020. As I exactly remember, it's almost 2 years now, and I'm still taking my one workshops also. So again, COVID का time था, and मुझे कुछ तो life में extra करना था घर पे बैठ के, and अपनी knowledge को थोड़ा सा expand करना था, and in a way share करना था. Because see, इसका सबसे बड़ा reason था workshop start करने का कि यार जो हमारे वाला प्रोफेशन है ना, इसमें देयर इज नो सेट पाथ ऑफ लर्निंग. जो भी लर्न कर रहे Hmm. हैं अपने आप से ही लर्न कर रहे हैं, कोई सिखाने वाला यहाँ नहीं है. आप ऑब्वियसली यूट्यूब ट्यूटोरियल्स ले सकते हो एंड ऑल दैट, बट पर्सनली मुझे खुद बड़ी प्रॉब्लम फेस होती है कि यार कोई अगर बंदा हमें बात करके चीजें समझा रहा है ना, तो उसका इम्पैक्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम मुझे जानते हो अच्छे से, Hmm. हमारी बात होती है, और तुम मुझे अगर एक पॉइंट बोलोगे कि यार हिना इंस्टाग्राम में ना ये स्टेट मतलब कोई भी स्टेटमेंट बोलोगे कि ये चीज काम करती है, नो मैटर अगर 100 यूट्यूब वीडियोस उसके अगेंस्ट में बात कर रहे हैं, मैं तुम्हारी बात सुनूंगी, क्योंकि Hmm. Right. जानती हूँ वो उस चीज का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है. सो विद दैट आइडिया आई स्टार्टेड दैट वर्कशॉप कि मुझे ना कहीं मेरी लाइफ में वो लर्निंग नहीं मिली मुझे, Hmm. एज इन कनेक्ट नहीं हो पाया मेरा उस लेवल पे किसी पर्सनली किसी के साथ कि कोई मुझे मेंटोर करे. फिर आई वाज लाइक यार जितना मुझे आता है एटलीस्ट मैं उतना तो पास ऑन कर दूं जो बिल्कुल ही बिगिनर्स हैं. Hmm. एटलीस्ट वो लोग वो गलती नहीं करे जो मैंने खुद से गलतियां कर करके जो चीजें सीखी हैं. सो आई Hmm. स्टार्ट दैट आइडिया एंड it picked up very well. I mean, I loved it myself, and people who joined, I am still connected with each and every one of Wow. that who took that workshop. We have a separate WhatsApp group जिसमें सभी लोग हैं. तो उनका भी फीडबैक काफी अच्छा रहा है. तो Hmm. नाउ नाउ अगेन आई टेक वर्कशॉप्स, बट उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम हो चुकी है बिकॉज आई ट्रैवल एंड ऑल. बट नाउ मेरे ग्रुप वर्कशॉप्स थोड़े से कम होते हैं, वन ऑन वन सेशंस थोड़े से ज्यादा होते हैं उसमें. वो भी मेरा एक ऐसे वही आइडिया था कि एक बारी में शायद मैं उतना अच्छे से किसी इंसान को नहीं बता पाऊँ. सो हाउ अबाउट अ मंथली मॉडल जिसमें हम हर हफ्ते कॉल करेंगे, एंड उसमें सो आई मॉनिटर ऑल द थिंग्स दैट Okay. पर्सन डू, एंड कैसे Hmm. कैसे क्रिएट हो रहा है. जस्ट एन एग्जांपल. सो Hmm. इट्स प्रॉपर मेंटोरशिप मॉडल. तो आई एम रियली लाइकिंग इट बिकॉज उसमें मुझे खुद जब स्टडी करना होता है कुछ भी आगे Hmm. बढ़ने से पहले, या फिर आई कैन नॉट जस्ट से एनीथिंग जस्ट फॉर Hmm. द. Hmm. सो
I'm liking it and people are liking it, thankfully. So yeah. That's great. That's great. So एक और चीज जो मैं सोच रही थी वो ये सोच रही थी कि how was can we touch on the part कि how was your journey like being that shy person to now facing the camera such boldly and saying everything you want to. तो वो transition I know that was slow but क्या help करा उस transition में? क्योंकि टॉकिंग टू कैमरा इज नॉट इजी. शुरू में मुझे ऐसा लगता था मैं खुद से ही बात करूँ तो मैं क्या बात करूँ. इवेंचुअली ऑब्वियसली थोड़ी सी लर्निंग हो गई बट आई वांट टू नो योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट. So I met this guy when I was doing travel affairs ka trip. So I met this guy on my trip only. He joined travel affairs ka second trip, and for good 6-7 trips he was a regular traveler with us. So he became a very good friend, like extremely good friend. So he used to be a Snapchatter that time. So Snapchat used to be really big, you know, and उस time पर लोग content creator नहीं होते थे. मतलब एंड वो स्नैपचैट पे वही रेगुलर जैसे हम इंस्टा पे स्टोरीज बनाते हैं, हर मोमेंट अपना रिकॉर्ड करते हैं, तो वो स्नैपचैट पे करता था. एंड उस टाइम पर 2017 इमेजिन उसके स्नैपचैट स्टोरीज पे 20-20 हजार व्यूज आते थे. इट मतलब बहुत ही बड़ा. उस टाइम पर उसको ब्रांड कोलैबोरेशंस मिलते थे एंड ऑल. आई डोंट, मेरे को पता भी नहीं था कि स्नैपचैट होता भी है कुछ. और तो वो ट्रिप में ऐसे करते रहता था, मतलब ट्रैक कर रहे हैं, अपने जूतों की फोटो डाल रही है वो, एंड लेकिन क्या बकवास कर रहे हैं. उसका आइडिया था, उसने मुझे बोला कि यार मुझे ना अपनी लाइफ डॉक्यूमेंट करनी है, तो वो मेरे को डॉक्यूमेंटेशन करना अच्छा लगता है. तो उसका वो आइडिया ना मुझे बहुत ज्यादा लेवल पे, वो एक लाइन मुझे बहुत हिट करी कि यार अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट करना इज अ गुड थिंग. उसने फंडे दिए कि क्यों करनी चाहिए डॉक्यूमेंट एंड ऑल दैट, एंड आई रियली लाइक्ड दैट पार्ट. और उसी टाइम पर ही जैसे उसने मेरे को ये फंडे दिए अपने, आई रिमेम्बर द डेट, इट्स वाज अगस्त 2017. ओके. उस टाइम पर हम वहाँ वो ट्रिप पर ही थे, तो वापस आए और वापस आके मुझे अपने ट्रिप पर निकलना था. मेरा अलग से ट्रिप था लद्दाख का. तो उसने मुझे बोला कि यार तू जा रही है तो तू ना अब तू भी डॉक्यूमेंट कर, तू शुरू कर. एंड लेजिट दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैंने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी का कैमरा पहली बारी लाइफ में खोला. एंड आई वाज लाइक, आई स्टार्टेड मेकिंग स्टोरीज कि हाय गाइस, and you know I'm doing this and all. And slowly gradually people started connecting with me, as in उन्होंने स्टोरी के रिप्लाई करने शुरू किए एंड ऑल. एंड आई वाज लाइक कि यार तुम ये देखो कि आई कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड जिसके कोई इतने ऐसे बहुत ज्यादा फ्रेंड्स का ग्रुप नहीं होता था कुछ भी. मतलब यू नो पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थी मैं, स्कूल में भी, कॉलेज में भी वही इतना ज्यादा खास किसी से मतलब नहीं था एंड ऑल. और उस लेट से अगर 10 रिप्लाई भी आ रहे हैं तो वो 10 बात करना वाज अ बिग डील, यू नो. अगर मैं उनको उस जगह के बारे में बता रही हूँ, दिखा रही हूँ, एंड दे आर कनेक्टिंग एंड ऑल दैट. तो इट स्टार्टेड दैट वे. तो मुश्किल से 400-500 भी नहीं थे. एंड धीरे 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 वो नंबर बढ़ता गया. और मेरे लिए वो टॉकिंग अबाउट दैट कॉन्फिडेंस वाला पार्ट, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे केस में इतना वो कॉन्फिडेंस वाली इतनी प्रॉब्लम नहीं थी ऑन कैमरा. समहाउ आई वाज मोर कंफर्टेबल ऑन कैमरा देन इन पर्सन. ओके. मतलब सामने वाले, मतलब उस टाइम थोड़ा सा ऑकवर्ड थी मैं कि लोगों को इतना नहीं बोल पाती थी. एंड दैट इज नॉट बिकॉज कॉन्फिडेंस नहीं था, इट वाज लाइक पता नहीं कॉम्प्लेक्स सा था, अजीब सा. एक प्रेशर नहीं था. अगेन इसमें अब वो छोटे सिटी वाला एलिमेंट काफी लेवल पर आ. छोटे सिटी वाला बंदा जब दिल्ली में जाके रहता है तो यू नो कैसे वो क्राउड जाता है एंड वो सब थोड़ा सा, if I'm able to explain it or not, but no, I'm getting it. I'm completely getting it. Your emotions, yeah. It was like that. But कैमरा के सामने वो so natural. मेरे को शुरू से ऐसा लगता था. हाँ, धीरे धीरे मैंने वो स्किल्स इंप्रूव करी, कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता गया, कंफर्ट लेवल बढ़ता गया कैमरा पे एंड ऑल. एंड स्टिल आई वुड से कि आई प्रेफर माय कैमरा मोर देन human beings. So you are among those creators, like introvert creators, who came to camera because they were shy talking to people, so not much interested in talking to people. And I've heard many stories. जो बहुत सारे good content create. Kritika Khurana is one of them. She talks about it a lot. And many others. They are like कि हम नहीं कर पाते थे बात लोगों से, so we find that camera is our friend, and that's how we started talking, and then confidence increased eventually. Yeah, but if I have to tell you now, I will not say कि मेरे अंदर वो कॉम्प्लेक्स है, कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं है. नाउ दैट आई अंडरस्टैंड थिंग्स एंड एवरीथिंग, मतलब यूजुअली मुझे अब ना आई एम वेरी सिलेक्टिव व्हेन इट कम्स टू लाइक बीइंग सोशल. सो मतलब इट्स लाइक कि आई डू नॉट रियली वांट टू
invest my energy in Energy. which is not worth. नहीं So, वो तो genuine, that's a genuine thing. Obviously you feel के मतलब drain हो रही है energy, तो there is no point के तुम बात करो यार. So that's another story. But yeah, amazing one. Okay, so any travel experience which you want to share, like बहुत ही different या बहुत ही amazing और बहुत ही scary, या you feel like कुछ near that type. I'm like near that बहुत ज़्यादा हो जाएगा, but कुछ ऐसा है you want to share? यार देखो, ऐसे तो हर ट्रैवल एक्सपीरियंस की अलग, मतलब हर ट्रैवल की अलग अलग स्टोरीज होती हैं, काफी मजेदार स्टोरीज, काफी नॉन मजेदार स्टोरीज. But I would like to mention, abhi recently, like in December only, I went to this place, very small village in West Bengal. It's called Perengtar. So I got to know about this from one Facebook group. It was a volunteer thing there and all, and I was like, ठीक I है, मैंने want to mention आपके mention करने के बाद I joined that group. So thanks for the recommendation. okay, okay, you are right. Yeah, go ahead. Uh, yeah, so I literally randomly just booked the tickets and went there and made vlogs and everything. And that was like कि random village में जहाँ language भी नहीं समझ आ रही है किसी की भी. And वहां पर ऐसे में 4-5 5-6 दिन के लिए हम वहां थी. There was this festival, उनका harvest festival था. लोग अलग ही लेवल पर है. मतलब इंडिया का वो एक ऐसा पार्ट है जो नहीं नॉर्मली वो एक्सपीरियंस हमें कहीं देखने को मिलता. ऐसा कुछ वो टूरिस्टी पार्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है वहां पे. सिर्फ वहीं के लोकल लोग हैं. एंड आई वॉज दी ओनली वन आउटसाइडर देयर, एंड एवरी वन वॉज लाइक, आप बॉम्बे से आए हो, बॉम्बे से हो, मतलब बॉम्बे, उनको सिर्फ बॉम्बे वर्ड उन्होंने सुना था लाइफ में. एवरी वन वॉज लाइक शॉक्ड, बॉम्बे से हो. हिंदी तो उनको बोलने भी नहीं आ रही थी, बट इतना भी टूटी फूटे हिंदी जो वो बोल पा रहे थे कि बॉम्बे से है, बॉम्बे से है. एंड अकेले आया यहाँ पे, पे आई हूँ, बॉम्बे से आई हूँ. एंड वो अलग था यार वो एक्सपीरियंस. आई वुड से कि बहुत ही आउट ऑफ कंफर्ट जोन था वो. एंड मतलब बहुत ही डिफरेंट था. ऐसा मैंने, मतलब उस ट्रिप पर मैं बिना किसी एक्सपेक्टेशन के गई थी. मुझे पता भी नहीं था कि वहाँ क्या होने वाला है, क्या खाने को मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा. एंड इनफैक्ट यू वॉन्ट बिलीव, सो द प्लेस वेयर आई वाज स्टेइंग, मैं वॉशरूम के लिए पड़ोसियों के घर जाती थी. बिकॉज वहां पर उन जहाँ पर मैं रह रही थी वहां पर इंडियन टॉयलेट थी, एंड किसी और के पड़ोसी के घर पे इट वाज Oh my वेस्टर्न. god. So I am fine, like I was totally fine doing that. I'm just telling you कि Obviously. open to every kind of experience. So with that idea I went there कि भाई, I was even open to that part कि अगर वॉशरूम नहीं हो, ड्राई टॉयलेट्स हो, फिर क्या करेंगे. तो मैं तो पता ही नहीं था वहाँ क्या होगा. एंड अगेन दैट इज नॉट अ टूरिस्टी प्लेस. वहां पर कोई गेस्ट हाउस नहीं है, कोई कैंपिंग फैसिलिटी, मतलब कुछ भी नहीं है वहां. सिर्फ लोग हैं. वो एक गांव है छोटा सा, मुश्किल से 60-70 घर होंगे, मुश्किल से. आई गेस मैंने ये ज्यादा नंबर ले लिया, इससे भी. दैट्स इट. कोई तीन में जो भी आमने सामने घरों में लोग रहते हैं, दैट्स ऑल. सिंस आई शेयर्ड दिस स्टोरी हियर, आई वुड से कि ऐसे एक्सपीरियंस हमें लाइफ में करने चाहिए. करने चाहिए. ट्रू. एंड आई ऑल्सो से कि एक सोलो ट्रिप हर किसी को लेना चाहिए टू ऐड टू दैट. और लोग सोलो ट्रिप्स पे नहीं जाते. वन सोलो ट्रिप कैन चेंज योर लाइफ फॉर एवर. दिस हैपेंड विद मी. आई वुड अगेन से 1 नहीं 2 नहीं, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए. बिकॉज इसमें एक ये चीज होती है कि फर्स्ट सोलो ट्रिप फॉर मी, जैसे इट वाज नॉट अ वेरी गुड हिट ऑनेस्टली. ओके. उसके बाद मैं रुकी नहीं, क्योंकि उसके बाद वाले सोलो ट्रिप्स बहुत ही अलग अलग रहे हैं. काफी बहुत अच्छे गए, काफी बहुत बेकार गए. यू नेवर नो अगेन, बिकॉज अगेन एज आई सेड कि ट्रैवल इज लाइक अ जर्नी जर्नी. दैट यू टेक फॉर योर माइंड टू एक्सप्लोर योरसेल्फ. तो राइट. से अपने आप को इतना नहीं समझ पाते हो, तुम्हें जा जाके पता चलता है. जैसे मैंने भी कोई एग्जांपल लिया, वो विलेज वाला, मुझे जाके ये समझ आया कि मैं ऐसी कंडीशंस में, मतलब मैं कितने दिन रह सकती हूँ, सर्वाइव कर सकते हो. सर्वाइव कर पा रही हूँ. एंड आई वाज लाइक 4-5 दिन के बाद आई वाज लाइक डन, कि मेरा हो गया, मेरे को ना इतनी शांति में और ऐसे नहीं रहना. दिस वाज थिंग. मतलब हम मैं सोच रही हूँ कि यार मुझे ना 4-5 दिन, एक हफ्ता ऐसी जगह पर जाना है जहाँ पर कोई भी नहीं हो, सिर्फ नेचर हो, एक अच्छा सा रूम मिल जाए, दैट्स इट. बट मुझे ऐसी जगह पे 3 दिन से ज्यादा शायद नहीं नहीं रह. रह सकते. तो ऐसी ऐसी चीजें होती है. हाँ बहुत सारी. I mean people don't travel, that's why I said at least one, because there are people who don't even take one, because one can, वो वन से तो आपकी एडिक्शन शुरू हो जाती है ना खुद को एक्सप्लोर करने की. तो वो जब एक बार एडिक्शन हो जाएगी तो फिर आप रुकोगे ही नहीं. यू वांट टू ट्रैवल मोर, यू वांट टू गो मोर, यू वांट टू सी द वर्ल्ड, यू वांट टू लर्न फ्रॉम द वर्ल्ड. तो वो तो है ही है. दैट्स लाइक कांस्टेंट प्रोसेस.
So Yeah. anyways, बहुत सारी बातें करी हमने. Last thing I want to ask is कुछ भी message for my audience or Gen Z who is listening or anybody who is listening to it. So any message from your end? Well, first of all, thank you so much for listening to this podcast. I really appreciate that, and thanks to you for inviting me here. And second thing is कि यार लाइफ ना बहुत ही छोटी है. ये शायद तुम लोगों ने पहले भी बहुत लोगों से सुना होगा, पढ़ा होगा कि YOLO, you only live once and all that shit. बट यार ये ना सिर्फ बोलने की बातें नहीं है, ये एक्चुअल फैक्ट है. तो मन में जो भी आ रहा है वो कर लो. एटलीस्ट मतलब गिव इट वन चांस. ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि नहीं हो पाएगा, बट अगेन मतलब मेरे लिए पर्सनली लाइफ में कि मेरे को रिग्रेट्स नहीं चाहिए किसी भी चीज के लिए. एंड ये चीज मैंने अपने करियर में इम्प्लाई करी है, अपने अपने पुराने जितने भी मेरे बॉयफ्रेंड्स रहे हैं सबके मैंने ये चीज एक्सपेरिमेंट करी है. As a matter of fact, I should not be telling you, it is not a part of travel story, but then there used to be this guy, I used to like him a lot. He was Hmm. my friend and I fell for him and I was like, यार अगर मैंने इसको बता दिया ना, एक होता है ना दोस्ती भी खत्म हो जाएगी and all that. Hmm. Hmm. But कोई बात नहीं, नहीं बताऊंगी तो भी कौन सी चलनी है ज्यादा. Hmm. तो फिर मैंने उसको बोला and again it didn't take the right turn. Hmm. But I But want no to regrets. No हाँ, regrets. regret यार, as simple as that. Live with no regrets. There is one line which I used to say बचपन में या मतलब not बचपन like in my early 20s that there should not be a scope of cash in your life. There should not be cash in your life. कि काश मैं ये कर लेता, काश मैं ये Exactly. कर लेती. So I think that goes in sync with that. So thank you so much Hina for joining in today, and thank you so much everyone for listening us today. You can reach out to us on our Insta handles. I'll be mentioning that on my Stuti Speaks handle where I market this podcast. So thank you so much, and I'll see you in next one. Stay happy, stay blessed, and most importantly, stay grateful. Okay, bye.